Today is Monday, 7th September 2020. Topic: ratio, rate, time, and speed. And exercise 9D, question number 10. Now the statement of the question: the diameter of a wheel of a car is 60 centimeter if the car travels at an average speed of 13.2 meters per second. Find the number of revolutions made by the wheel per hour, giving your answer correct to the nearest whole number. Take pi to be 3.142. Now for the solution of this question, we are given the diameter of the wheel as 60 centimeter. So the radius would be half of it, means 30 centimeter, right? Now find out the circumference. Circumference would be, the formula of circumference 2 pi r. So it would be equal to 2 multiplied by pi is given 3.142 and r is 30. So it comes 1.8853 centimeter. 188.52 centimeter. Now I am converting it into meters. तो meters में convert करने के लिए it should be divided by 100 because 100 centimeter is equal to 1 meter. So it would be 1.885 meters, right? Speed is given to us as 13.2 meters per second, and now it should be converted into kilometers per hour. So 13.2 meters over 1 second. Now for the conversion, we may say that the distance covered in 1 second, distance covered in 1 second is equal to 13.2 meters. देखिए जिस वक्त स्पीड है 13.2 meters per second means the distance covered in 1 second is 13.2 meters, right? अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour. तो वो हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour equal to 13.2 multiplied by 60 of distance covered in 1 minute multiplied by 60. Now this is distance covered in 1 hour. That would be equal to 47,520 meters, right? Now for the number of revolutions made by the wheel in 1 hour. Number
of revolutions made by in 1 hour is equal to जो डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द circumference was 1.885, तो 47,520 डिवाइडेड बाय 1.885, 47,520 divided by 1.8852 results 25,206.87. लेकिन ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, सो करेक्ट टू द होल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है, तादाद है ना. सो और यहाँ कहा भी हमसे यही गया है कि करेक्ट टू द होल नंबर हमें फाइंड आउट करना है. सो राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ करने पर ये हो जाएगा 25,207 रेवोल्यूशंस, राइट. अब मैं इसे एक मर्तबा फिर रिवाइज कर देता हूँ सॉल्यूशन को. देखिए, हमें इस क्वेश्चन में गिवन था द डायमीटर ऑफ द व्हील. That diameter was 60 सेंटीमीटर. जब डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा. अब सरकमफेरेंस हम फाइंड आउट करते हैं. सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना हमने क्यों है? इसलिए कि जब व्हील कार का व्हील कोई रास्ता तय करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये फॉर एग्जांपल व्हील है, तो ये जब चलता जाएगा रोड के ऊपर तो क्या होगा, यहाँ हम कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, तो ये पूरा रेवोल्यूशन कवर करेगा, तो तकरीबन इतना फासला ये कवर करेगा. तो वो डिस्टेंस जो ये कवर किया है वो एक रेवोल्यूशन के बराबर. तो जब हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर डिवाइड करेंगे रेवोल्यूशन पर, तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे. क्लियर? सो इसलिए सरकमफेरेंस हमने फाइंड आउट किया दिस वे. नाउ स्पीड इज गिवन एज 13.2 मीटर्स पर सेकेंड. इसका मकसद ये है कि दरअसल ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड है. तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर होता है 13.2 मीटर्स. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 3600 से, यानी 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, इससे मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 47,520 meters. Now number of revolutions made by the wheel in 1 hour. तो 1 hour में जो distance cover किया होगा, that distance divided by the circumference would result the number of revolutions. और हमें चूँकि जवाब whole numbers में चाहिए, सो हमने इसे round off कर दिया, right? Afterwards, review exercise 9, page number 228, question number 2. Now the statement of the question. 3 types of coffee beans A, B and C are blended in the ratio 3:5:7 to make a bag of coffee powder. Number 1. Given that the bag contains 45 kg of coffee powder, find the mass of each type of coffee beans in the mixture. Number 2. If A costs $7 per kg, B costs $10 per kg, and C costs $13 per kg, find the cost per kg of the mixture. Now for its solution. Now the solution of question number 2.
the ratio of A, B and C types of the beans by weight are 3:5:7. यानी अगर मैं इसको 6 कर दूं तो ये 10 और ये 14 हो जाएगा, यानी डबल अगर कर दिया जाए तो अगर मैं, क्योंकि इसका इनमें से किसी का वेट मुझे मालूम नहीं है ना, तो हम x फ़र्ज़ कर देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बीन ए का जो वेट है दैट इज़ 3x. जब इसका वेट 3x होगा तो इट वुड बी 5x एंड दिस वुड बी 7x. तो लिखिए लेट mass of type A equal to 3x kg. Then mass of B is 5x kg and the mass of type C is equal to 7x kg. Right? Now sum of all the masses या कहना चाहिए कि mass of the mixture, right? तो mass of mixture that is equal to, इन सबको सम अप कर देते हैं, तो इन्हें सम अप करने से ये हो जाएगा 3 + 5 8 + 7 तो 15x. लेकिन हमें mass of mixture गिवन है. देखिए जनरल स्टेटमेंट में क्या है, 45 kg. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई. नाउ सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. इफ वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 15, x comes 3. So this way mass of type A हो जाएगा 3 multiplied by the value of x means multiplied by 3 multiplied by 3 9 kg. बिल्कुल ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था भला? आई थिंक इट वाज the mass of each type of the coffee beans in the mixture. So mass of A is equal to 3 multiplied by 3 equal to 9 kg. And same way mass of B, that would be 5 multiplied by 3, तो ये 15 kg. और इसके बाद mass of type C, that would be 7 in multiplication with the value of x, तो ये हो जाएगा 21 kg. This was part 1. Now for part 2. अब पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा गया? देखिए कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ मिक्सचर. तो देखिए कॉस्ट ऑफ मिक्सचर दैट इज इक्वल टू टाइप ए के हैं 9 kg और उसकी जो कॉस्ट है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस टाइप बी है 15 kg और इसकी प्राइस हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10. टाइप सी है कितना, 21 kg और इसकी कॉस्ट है
$13 पर केजी। तो ये इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। सॉल्व कीजिए, 9 7 63 प्लस ये 150 हो जाएगा, प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 273। इन सबको एडअप कीजिए, इट वुड गिव अस 486 kg, सॉरी डॉलर्स, क्योंकि ये कॉस्ट हमने फाइंड आउट की ना, डॉलर्स। ये है कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी। तो पर केजी फाइंड आउट करने के लिए इट वुड बी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द मिक्सचर, यानी 15, बिल्कुल ठीक है। तो सॉरी 45, मास ऑफ द मिक्सचर है 45 kg, तो 45 पर इसे डिवाइड कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर केजी, तो वो हो जाएगा 486 डिवाइडेड बाय 45, इट वुड रिजल्ट $10.8 $10.8 per kg, right? Now statement of third question. A box contains 36 books and some toys. The ratio of the number of the books to the number of toys is 4:5. After some toys are given away, the ratio of the numbers of books to the number of toys becomes 12:11. Find number 1. The initial number of toys in the box. Number 2. The number of toys that are given away. Now for the solution of this question. The ratio between books and toys is mentioned as 4:5. We can say number of the books in the box, तो वो 4x हम फर्ज कर लेंगे, लिखते हैं let number of books equal to 4x, or initial number of toys that will be equal to 5x. ये बुक्स भी इनिशियली ऑब्वियसली 4x हो जाएगा, और इनिशियल नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू 5x. But we are given the information that the number of books in the bag are 36. तो ये हमने फ़र्ज़ कर लिया था 4x. So 4x I can say is equal to 36. ये 36 तो हमें given है ना. अच्छा, now this is an equation. Solving this equation, we have found that x comes 9. So number of toys कितने हो जाएंगे? 5 multiplied by 9, 45. So initial number of toys, is equal to 9 multiplied by 5, तो 45 ये तादाद हो जाएगी टॉयज़ की इनिशियली. नाउ पार्ट 2. लेट नंबर ऑफ टॉयज़ दैट आर गिवन अवे, किसी भी एक वेरिएबल के बराबर कर देते हैं इसको. लेट नंबर ऑफ टॉयज़ गिवन अवे
इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल y, देन सिचुएशन क्या हो जाएगी, अब जिस वक्त कुछ टॉयज दिए जा चुके हैं तो अब नई रेशो जो बनती है, नाउ न्यू रेशो कौन सी, बुक्स टू टॉयज, दैट रेशो इज 12:11, राइट। सो हम अब एक इक्वेशन डेवलप करने लगे हैं। देखिए 36/45 - y, ये बराबर हो जाएगा 12/11। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 36 नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, और टॉयज़ जब हमने y टॉयज़ दे दिए तो बाकी कितने वो टॉयज़ रह जाएंगे, 45 टोटल थे तो 45 में से y माइनस किया गया, तो इनके दरमियान जो रेशो है वो रेशो है 12:11। उसे मैंने इस अंदाज में लिखा है कॉमन फ्रैक्शन की शक्ल। नाउ दिस इज एन इक्वेशन, सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सो cross multiplication gives this is multiplied by 12, so 12 multiplied by 45 minus 12y, right। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। नाउ इट वुड बी 12y इक्वल टू 540 माइनस 396, और आखिर में हम 12 पर डिवाइड कर देंगे। सो 12y इक्वल टू 540 में से माइनस करते हैं 396, दिस इज 12y इक्वल टू 144, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 12। तो देखिए जब 12 पर डिवाइड करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। और y हमने क्या सपोज किया था पीछे, ये देखिए, लेट नंबर ऑफ टॉयज गिवन अवे इक्वल टू y, तो अब नंबर ऑफ टॉयज गिवन अवे इक्वल टू 12। लिखते हैं सेंटेंस, लिखिए नंबर ऑफ टॉयज गिवन अवे is equal to 12, right? Question number 4 is not in your syllabus. Now question number 5. Statement of the question: a car took 2 hours and 15 minutes to travel 198 kilometers. If it arrived at its destination at 12:06, find number 1, the time it started its journey, number 2, the average speed of the car, giving your answer in kilometers per hour, right? I think such type of the questions you have done in the exercise where the time concerned questions were done, लेकिन चलें अभी इसको सॉल्व करते हैं। So far as first part of the question is concerned, हमें find out करना है time it started its journey, यानी इसका जो डिपार्चर टाइम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें जनरल स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। इधर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है जर्नी टाइम, that is journey time is 2 hours and 15 minutes, 2 hours and 15 minutes। तो ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स
यस, 1/4 होते हैं, 1/4 आवर। तो हाँ, जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में 15 मिनट्स को, देखिए रफ वर्क में कर देखते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 60, तो कैंसिलेशन के बाद ये देगा 1/4, दैट वुड बी इक्वल टू कितना, मिनट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब इधर स्टेटमेंट में हमें दिया गया है अराइवल टाइम, तो अराइवल टाइम इज़ 12:06। अब हमें फाइंड आउट करना है डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम ये हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए अराइवल टाइम में से हम जर्नी टाइम को माइनस करेंगे तो हमें डिपार्चर टाइम मिल जाएगा। ये कोई नया कंसेप्ट तो नहीं है, पहले हमने इस पर बेस करते हुए कई सारे सम्स किए, वो टाइम वाली पूरी एक्सरसाइज इसी तरह से हमने की। तो उसी अंदाज में हम जर्नी टाइम को माइनस करेंगे अराइवल टाइम में से। तो देखिए अराइवल टाइम है, यहाँ रफ वर्क में आ जाते हैं, अराइवल टाइम है 12:06 और जर्नी टाइम है 2:15। अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन मिनट्स में प्रॉब्लम होगी, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये 6 में से 15 को माइनस करना है। तो 12 में से 1 आवर हम लेते हैं तो ये बन जाएंगे 11 आवर्स, वो 1 आवर इसमें शामिल कर देते हैं, तो 1 आवर यानी 60 मिनट्स हम 6 में ऐड करेंगे तो 66 मिनट्स हो जाएंगे। अब इसमें से 2 आवर्स और 15 मिनट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ देखिए 66 में से जब 15 को माइनस किया तो इट केम 51 और 11 में से 2 को माइनस किया तो 9 आवर्स एंड 51 मिनट्स। और इसे जिस वक्त हम लिखेंगे 24 आवर क्लॉक के अंदर तो ये लिखा जाएगा 0951। ठीक हो गया। सो डिपार्चर टाइम is equal to 0951. This was part 1. Now part 2. Part 2 में उसने पूछा है the average speed of the car, giving your answer in kilometers per hour. तो for the second part अब हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए पहले जो डिस्टेंस कवर्ड है वो नोटिस करेंगे। देखिए डाटा में हमें लिखना होगा डिस्टेंस कवर्ड that is how much, 198 kilometers, 198 kilometers, and the time taken है 2 hours and 15 minutes, यानी ये हो जाएगा 2.25 hours। ये मैं पार्ट 1 के अंदर बाय मिस्टेक कर रहा था। देखिए टाइम हमें जो जर्नी टाइम दिया गया है वो है 2 hours and 15 minutes। तो जो 15 मिनट्स हैं उन्हें मैं कन्वर्ट करता हूँ आवर्स में, तो आई थिंक दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 60 बिकॉज स्मॉलर यूनिट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू बिगर यूनिट।
मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट हमने करना है, सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ जाएगा 1/4। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा हमें 0.25। सो 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 2 आवर्स ऑलरेडी है हमारे पास, तो मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया आवर्स में, तो ये 0.25 आवर्स आए। दोनों को एडअप करने से जो टोटल टाइम टेकन है दैट इज़ 2.25 आवर्स। अब स्पीड फाइंड आउट करते हैं। एवरेज स्पीड यू नो इज इक्वल टू डिस्टेंस divided by time, distance covered divided by the time taken. So it would be equal to, the distance is 198 divided by the time taken is 2.25. Now do divide. This results 88, and now the unit kilometers per hour, right? This was your lesson for today. और क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का, दैट इज़ द क्वेश्चन यू हैव टू डू इन होमवर्क। देखिए रेशो का क्वेश्चन है, बहुत शुरू में आपने रेशो की खासी प्रैक्टिस की, सो दिस वाज, आई थिंक दिस वाज ridiculous to do it in class work. So इसे आप ट्राई कीजिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसे देखते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो कुछ आपने क्लास वर्क में पढ़ा है ये सारा रिवाइज कीजिए इन होमवर्क। क्लियर? ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। सी यू टुमारो इंशाअल्लाह।